So, very good evening, all the participants. Today we will start with section 158 onwards. Let us see how much we can cover. So, this is an illustration which is based on section 158. Mohanlal stood a guarantor for loan taken by XYZ. You can note down the figures also in case you want. So, Mohanlal, and I will advise you, you should always have a copy of the bear code with you. Hard copy, preferably hard copy or a soft copy so that you can open the related section also side by side. So Mohanlal stood a guarantor for loan taken by XYZ Limited from PNB. On default by XYZ Limited, insolvency proceedings were initiated by PNB against Mohanlal under Section 95. The repayment plan proposed by Mohanlal could not be completed and bankruptcy proceedings were initiated against Mohanlal by PNB. Now PNB had applied under Section 123 on 1st of December 2021. So this date is important, that when they applied for this bankruptcy. So what is the time period for applying for bankruptcy? Within how much period the debtor or creditor can apply for bankruptcy? We discussed this point yesterday. It is given, I think, in section 121. So section 121 subsection 2 says that an application for bankruptcy shall be filed within a period of 3 months of the date of the order passed by the adjudicating authority. So here PNB had applied under section 123 on 1st of December and the application was admitted by NCLT void its order under section 126 on 15th of January. So these two dates are important. And third date is discharge order under section 138 was issued on 20th February 2023. So application is made on 1st of December and the date of admission is 15th of January. Now Mohanlal has got the following properties on 1st of December. A residential unit in Bengaluru worth 20 lakhs. Leasehold rights in a canteen in a cinema hall. Commercial plot worth rupees 60 lakhs and gold jewelry worth rupees 5 lakh devolved upon him on the death of his father. Mohanlal's father died on 25th February 2023. So this fact is also important, that the Mohanlal's father has died on 25th February and the discharge order is issued on 20th of February. So his father has died after the discharge order was issued and this property, it has devolved upon him on the death of his father. That means after the issue of the discharge order. Now Mohanlal is a trustee in a trust and is holding property worth rupees 15 lakhs on behalf of that trust. So these are some of the facts which are given to us. Agricultural land in village. So these are some of the facts. Now let us see some of the questions on this. Now based on the facts, please answer the following questions. First question. He entered into an agreement on 5th of December 2021. Now this date is important because the application has been made on 1st of December and it has been admitted on 15th of January. So in between these dates, he has entered into an agreement to sell the Bengaluru residential unit to Chandrasekharan. Chandrasekharan is not aware about the bankruptcy proceedings initiated against Mohanlal and has acquired the residential unit in good faith for value and without notice of the bankruptcy proceedings. Now let us see what section 58 says about this. Section 58, if you read section 58, let us read first section 58 before answering this question. 158. Yes, 158. Yes, sorry. So 158. So, but the point here is that the agreement is between the date of filing and date of admission of application. Now let us see what section 158 says. This is section 158. Section 158 says any disposition of property made by the debtor during the period between the date of filing of the application for bankruptcy and the bankruptcy commencement date shall be void. So any disposition of property is void if it is done during this period. And our date falls within this period. Any disposition of property made under subsection 1 shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy commencement date in
good faith, for value, and without notice of the filing of the application for bankruptcy. And for the purpose of this section, the term property means all the property of the debtor, whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt. Okay? But shall not include property held by the debtor in trust for any other person. Now, let us answer this question. So, whether he can dispose this property or not? Void. It's void. Residential unit in property is Bengaluru. sold. Huh? Property is purchased or property is sold during the period between the date of filing and the date of application for bankruptcy. Mm-hmm. So it's it is an excluded asset. Will it make any difference? Sir, excluded assets are personal assets. Mm-hmm. Excluded as 20 lakhs. But this part 3 is important. If we see what it says for the purpose of this section, the term property means all the property of the debtor, whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt. So this is important. So if we see, term property means all the property of the debtor. But what will not be included? Shall not include property held by the debtor in trust for any other person. So even excluded property is covered here, because it doesn't, it is not comprised in the estate of the bankrupt. So it says term property means all the property of the debtor. So it will not make any difference even if it is an excluded asset. Whether it is voidable, the answer is no. The transaction of transfer is void. ठीक है? Excuse me, sir. सर मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पर्सन हु इज बाइंग द प्रॉपर्टी, उनके ऊपर ओनर्स है कि दे शुड हैव क्लैरिफाइड इट एट द फर्स्ट प्लेस कि इफ द पर्सन, उनको मतलब कोई बैंक्रप्सी का ऑर्डर आया कि नहीं, वरना मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा परचेज कर रहा है no, it will not make any difference. It is void. So void means that the transaction did not take place at all. Even if he bought it for good faith, even if he bought it for value, even then it will be void. ओके, तो सर फिर भी लाइक एनसीएलटी के जुरिस्डिक्शन में ही आएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? ओके, क्या बोलता है देख लीजिए ना, क्वेश्चन में क्या, यहाँ क्या बोलता है? Any disposition of property shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy commencement date. तो कोई भी किसी भी तरह से हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, इट इज वॉइड. सिंपल सी बात है. सर एनी पेनल्टी ऑन सेल ऑफ द सेम? बिकॉज वो तो उसे पता है वो लॉफुली वॉइड होगा, माइट भी सामने वाले को नहीं पता दैट ही इज गोइंग थ्रू बैंक्रप्सी. एनी पेनल्टी ऑन द सेम? वो पेनल्टी सेक्शन में पढ़ेंगे ना, आज पढ़ेंगे, पेनल्टी में पढ़ेंगे वो. जी जी, उसका अलग से सेक्शन. Sir, एक छोटा डाउट है सर. Yes, if the only advance is given for the purchase of the property, then can it be it is void or voidable, sir? Actually, it is disposition of property, and property, property is, the definition of property is given in section 3 subsection 27. No. Property sale has not been completed. Only advance given for the purchase of the property. No, that is why I am saying even if you give some cash, and that is also property. Okay, sir. What is the definition of property? The definition of property is given in section 3 subsection 27, which applies to the whole of the code. Property does not only mean immovable property. Okay, sir. Okay. Now, section 159. So 158 is clear. It is void. Okay. Continuing with the above illustration, what are the rights of the bankruptcy trustee Amit Talwar in case the property devolved upon Mohanlal has been disposed of by Mohanlal to Rooplal? Now there is another property. Let us see. What is that property? It says commercial plot worth rupees 60 lakhs and gold jewelry worth 5 lakh devolved upon him on death of his father, and Mohanlal's father has died on 25th February and discharge order was issued on 20th of February. So it means this property has devolved upon him after the discharge order was issued. Now let us see this question. Now what are the rights of the bankruptcy trustee? Because bankruptcy trustee is the custodian.
in case the property devolved upon Mohanlal has been disposed of by Mohanlal to Rooplal. Rooplal acquired this property in good faith for value and without notice of the bankruptcy proceedings. Now let us read section 159 for this before we answer this question. Section 159 talks of after acquired property of the bankrupt. What is after acquired property? After acquired property means property which has been acquired after the application is admitted. The bankruptcy trustee shall be entitled to claim for the estate of the bankrupt any after acquired property by giving a notice to the bankrupt. A notice under subsection 1 shall not be served in respect of excluded assets. Number 1. So excluded assets he cannot acquire. Any property which is acquired by or devolves upon the bankrupt after a discharge order is passed. So these are the facts of our case, because this property has devolved upon him after a discharge order is issued. Third is the notice under subsection 2 shall be given within 15 days from the day on which the acquisition or devolution of the after acquired property comes to the knowledge of the bankruptcy trustee. And for the purpose of subsection 3, anything which comes to the knowledge of the bankruptcy trustee shall be deemed to have come to the knowledge of the successor of the bankruptcy trustee. So in this case, what will happen? The answer will be D, because both the properties have devolved upon Mohanlal after the date of discharge order Yes. under section 138 and are not covered under section 159. Now suppose this property devolved upon him, say, let us change the facts. Discharge order is issued on 20th of February, but say his father died on, say, 25th of January. Suppose these are the facts. Then what will happen? Suppose the facts are that Mohanlal's father has died on 25th of January. Then what will happen in this case? Then the answer will be C, because it says notice can be given for gold jewelry exceeding 1 lakh and commercial plot, since these are not covered under excluded assets. So commercial plot is not covered under excluded assets. And what is the period of notice they have to give? Under 159? 15 days. Yes, 15 days from which date? From the day of acquisition or Day of acquisition or devolution of property. So if the facts are changed, then he can give notice. The bankruptcy trustee shall not be entitled by virtue of this section to claim from any person who has acquired any right over after acquired property in good faith for value and without notice of the bankruptcy trustee. A notice may be served after the expiry of the period. So this is also important, that the bankruptcy trustee shall not be entitled by virtue of this section to claim from any person who has acquired any right over after acquired property in good faith for value and without notice of the bankruptcy. So in this case, what were the facts? Rooplal has acquired this property in good faith for value and without notice of the bankruptcy trustee. So the bankruptcy trustee cannot acquire it, cannot claim it from Rooplal. तो रूपलाल से नहीं ले सकेगा तो क्या करेगा? वो फिर हमारे को पेनल्टी ये बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के पहले की बात हो रही है ना? नहीं, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग के बाद की बात हो रही है 159 में, आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी 2-3 तरह के डिस्कस किया है। अभी जो आप बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? ये तो आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात हो रही है।
नहीं, इसकी बात नहीं, जो अभी जो आप बोल रहे थे कि अगर वो पहले डेथ हो जाती, उसके बाद है कि good हाँ faith में कोई हाँ हाँ, अगर पहले डेथ हो जाती तो फिर तो 159 में कवर हो जाता ना। लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन टू क्लेम फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड इन इट। अब बात है कि वो प्रॉपर्टी उससे क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी उससे क्लेम नहीं कर सकता। अब वो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेगा वो पेनल्टी में दिया हुआ है। ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेगा वो आपको पेनल्टीज में मिलेगा कि भाई अगर बैंक्रप्सी ट्रस्टी प्रॉपर्टी को इधर उधर कर देता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, दैट इज वो पेनल्टी वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। नाउ सेक्शन 160, continuing with the above illustration, what are the rights of the bankruptcy trustee regarding the agricultural land situated in a village? क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा सेक्शन में, ये था कि there is an agricultural land also in a village. The bankruptcy trustee Amit Talwar had issued advertisements in local newspapers about the proposal to sell agricultural land, but nobody came forward. ठीक है? The land is situated near a nala drain. ठीक है? Sukhbir Singh had been given the rights to grow crops on the land for a period of 5 years. Sukhbir Singh came to know that the bankruptcy trustee is interested in disclaimer of owner's property. So this illustration is based on section 160 and has written to Amit Talwar that he has spent a sum of rupees 25,000 towards mobilization of resources to sow the agricultural land. Now, what are the options? But before we weigh the options, let us see what section 160 says. This is section 160. Section 160 says the bankruptcy trustee may, by giving notice to the bankrupt or any person interested in the owner's property, disclaim any owner's property which forms a part of the estate of the bankrupt. Now let us look at the facts. So whether Sukhbir Singh is a person interested in the property? The answer is yes. The bankruptcy trustee may give the notice under subsection 1, notwithstanding that he has taken possession of the owner's property, endeavored to sell it, or has exercised rights of ownership in relation to it. So these facts also match because he issued an advertisement in local newspaper. That means he endeavored to sell it. Okay? But nobody came forward. So ये 160 subsection 2 भी match हो रहा है हमारा. Now section 160 subsection 3, a notice of disclaimer under subsection 1 shall determine as from the date of such notice, okay, the rights, interests and liabilities of the bankrupt in respect of the owner's property disclaimed, discharge the bankruptcy trustee from all personal liability in respect of the owner's property as from the date of appointment of the bankruptcy trustee. A notice of disclaimer under subsection 1 shall not be given in respect of the property which has been claimed for the estate of the bankrupt under section 155 without the permission of the committee of creditors. ठीक है? A notice of disclaimer under subsection 1 shall not affect the rights or liabilities of any other person and any person who sustains a loss or damage in consequence of the operation of a disclaimer under this section shall be deemed to be a creditor of the bankrupt to the extent of the loss or damage. Okay? So, because in this case we have seen that Sukhbir Singh has spent a sum of 25,000 rupees towards mobilization of resources. For the purpose of this section, the term owner's property means any unprofitable contracts or any other property comprised in the estate of the bankrupt which is unsaleable or not readily saleable or is such that it may give rise to a claim. तो अब हम सेक्शन 160 के बेसिस पर देखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा. ठीक है? He has given ad in the paper but he could not sell it. There is a person interested in the property, सुखबीर सिंह. तो ऑप्शंस क्या होगा इसमें? पहला ऑप्शन देखते हैं. The bankruptcy trustee can disclaim the agricultural land without giving a notice to anyone since no buyer came forward. तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है या गलत है? वो तो गलत है बिकॉज दिस सुखबीर सिंह इज इंटरेस्टेड, है ना. सेकंड क्या है? द बैंक्रप्सी ट्रस्टी कैन डिस्क्लेम द एग्रीकल्चरल लैंड
after giving a notice to Mohanlal and Sukhbir Singh. मोहनलाल कौन है? मोहनलाल है बैंकक्रप्ट, तो मोहनलाल को भी नोटिस देना है क्या? नोटिस किसको देना है देख लीजिए 160 में। A notice of disclaimer To the bankrupt or any person interested in the onerous property. हाँ 160 सबसेक्शन 1, ठीक है। बैंकक्रप्ट को दे रहा है या जो भी पर्सन है इंटरेस्टेड उसको दे रहा है। The bankruptcy trustee can disclaim the agricultural land after giving a notice to Mohanlal and Sukhbir Singh. However, Sukhbir Singh can claim the amount of 25,000 and shall be deemed to be a creditor of Mohanlal to that extent. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी इसमें कवर हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है कि लास्ट वाला पॉइंट है ना, who sustains a loss or damage shall be deemed to be a creditor, 160 subsection 5. So this option is correct option, that he can disclaim but he will give notice to the bankrupt and to the person who is interested in the property. However, any person who has sustained a loss, so he can claim that loss and he shall be creditor of the bankrupt to that extent. ये है section 160, ठीक है। अच्छा 155 क्या बोलता है? 155 State of bank. estate of the bankrupt. सर लॉस किसको हुआ इसमें? है जी? सर इसमें हाँ मनोज बंसल जी क्या बोल रहे हैं आप? सर बैंकरप्ट को और ठीक है जो पर्सन नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया था सर आपने के अंदर? नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि वो लॉस क्लेम कर सकता है। हु कैन क्लेम द लॉस? ये जो जो जिसको भी लॉस आया है इस वजह से, डिस्क्लेमर की वजह से। भाई अगर ये डिस्क्लेम हो जाएगी तो इसने हाँ जी। जो पैसे लगा रखे हैं, इसने जो रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रखी है वो तो खराब हो जाएंगे ना इसकी तो। राइट, तो इसके लिए क्रेडिटर बन जाएगा मोहनलाल का। ठीक। नाउ 161 कंटिन्यूइंग विद द अबव इलस्ट्रेशन। देखो थोड़ा थोड़ा ना इससे आइडिया हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन मैंने खुद ही बना रखी है समझाने के लिए क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट सेक्शंस है। ऐसे क्या होता है बिना इलस्ट्रेशन के ना समझ में नहीं आता, ऐसे पढ़ते रहोगे बता थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है। इससे थोड़े सी स्टोरी सी आपके माइंड में आ जाएगी और याद रहेगा आपको। Continuing with the above illustration, Sukhbir Singh, on coming to know of the advertisement for sale of agricultural land, had visited the office of Amit Talwar and acquired from him on phone whether the bankruptcy trustee wanted to disclaim the agricultural land. ठीक है, अब इसी के फैक्ट्स थोड़े से चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इस फैक्ट्स में क्या है कि ये आया था इसके पास सुखबीर सिंह की बजाय हम इसका नाम ही चेंज कर देते हैं सुखबीर सिंह, बिकॉज देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन दी प्रॉपर्टी, 160 टॉक्स ऑफ ए पर्सन इंटरेस्टेड इन दी ओनरस प्रॉपर्टी। अब इंटरेस्टेड कौन होगा? इंटरेस्टेड दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहला, जो उस पर कुछ काम कर रहा है, मान लीजिए आपकी कैंटीन है, कैंटीन में कोई सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो जिसको सब लीज पे दे रखी है, कोई सब टेनेंसी है, इस तरह से ये सारे लोग जो है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो सब कॉन्ट्रैक्टर में भी दी इंटरेस्टेड पर्सन, वो तो इंटरेस्टेड पर्सन मान ही लिया जाएगा। दूसरा इंटरेस्टेड पर्सन कौन हो सकता है? हु हैज इंक्वायर्ड इन राइटिंग। ठीक है, ये इंक्वायर्ड इन राइटिंग कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 161। No notice of disclaimer under section 160 shall be necessary if a person interested in the onerous property has applied in writing to the bankruptcy trustee or his predecessor requiring him to decide whether the onerous property should be disclaimed or not. ठीक है, and a decision under clause A has not been taken by the bankruptcy trustee within 7 days of receipt of the notice.
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक आदमी इससे पूछता है, ठीक है, मान लीजिए राजवीर सिंह है कोई, इसको हम राजवीर कर देते हैं, और यहां भी राजवीर कर देते हैं। एक राजवीर सिंह को पता चला भाई इन्होंने पेपर में ऐड दी थी, और ये ऑफिस में आया और उससे फिर ऑफिस में मिला नहीं अमित तलवार, तो इन्होंने फिर फोन से पूछा कि वेदर द बैंक्रप्सी ट्रस्टी वांटेड टू डिस्क्लेम द एग्रीकल्चरल रेंट, लेकिन अमित तलवार टोल्ड हिम दैट नो डिसीजन हैज येट बीन टेकन एंड ही वुड लेट हिम नो इन केस ऑफ एनी फर्दर डेवलपमेंट इन द मैटर। तो इन व्यू ऑफ द अबव कैन द बैंक्रप्सी ट्रस्टी गो अहेड विद द डिस्क्लेमर, तो क्या आप डिस्क्लेम कर सकता है अमित तलवार, क्वेश्चन ये है, and this question is based on section 161. So let us first see section 161 before we answer this question. 161 क्या बोलता है? No notice of disclaimer under section 160 shall be necessary if a person interested in the owner's property has applied in writing to the bankruptcy trustee or his predecessor requiring him to decide whether the owner's property should be disclaimed or not. ठीक है, पहली बात तो अप्लाई करना है, कैसे करना है? राइटिंग। डिसीजन अंडर क्लॉज ए हैज नॉट बीन टेकन बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस। एनी ओनर्स प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी डिस्क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। ठीक है, अगर किसी ने राइटिंग में अप्लाई किया और उस पर कोई डिसीजन नहीं लेता है तो उस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम नहीं कर सकते, पर ये है मतलब, ठीक है ना, उसके लिए नोटिस नहीं दे सकते। नोटिस किसको देना है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देना है, ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि नो नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 160 शैल बी नेसेसरी इफ ए पर्सन इज अप्लाइड इन राइटिंग एंड डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद इन 7 days ऑफ द रिसीट। ठीक है, और अगर कोई ओनर्स प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी डिस्क्लेम्ड तो इट शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, इसने फिर से फोन पर पूछा, ठीक है ना, राइटिंग में नहीं इंक्वायरी किया। तो राइटिंग में इंक्वायरी नहीं किया तो क्या बैंक्रप्सी ट्रस्टी कैन गो अहेड विद द डिस्क्लेमर? द आंसर इज यस। कब नहीं डिस्क्लेमर के लिए जा सकता? व्हेन ही हैज इंक्वायर्ड इन राइटिंग एंड द डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद इन 7 days। हाँ, ये 161 है। अब अगला देखते हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर में जो है ना, ये हाँ। क्यों डिक्लेयर करेगा एग्रीकल्चरल लैंड बिलोंग्स टू हिम ना, टू द कॉर्पोरेट डेटर, अपना इंडिविजुअल पर्सन? नहीं, the idea is that in case it is of some use to somebody. Suppose there is a villager who is living in that village. Now that he might be interested in purchasing that land. The idea is maximization of the interest of stakeholders. So there, हाँ, तो अभी समझो वो जो सुखबीर सिंह जो भी कुछ है लीजोल्ड राइट उसके पास है, हाँ, तो उसका कॉस्ट तो है ना लैंड का, तो लैंड तो सेल कर सकते हैं ना? नहीं, वो लैंड सेल नहीं हो रही ना, तभी तो पेपर में ऐड दिया, सेल कोई हो ही नहीं रही वो। अच्छा, ये सेल हो नहीं रही, पंचायत वाले टैक्स मांग रहे हैं अपना। ओके, तो ये इंटरेस्टेड पार्टी कैन परचेस? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, पर्पस तो वही है ना, ये इंटरेस्टेड पार्टी हो सकता है इसके काम की हो, तो ये परचेज करना चाह रहा है, इसको दे दो, ये है। अच्छा, कंटिन्यूइंग विद द अबव इलस्ट्रेशन, मोहनलाल हैज गॉट लीज होल्ड राइट्स इन ए कैंटीन, क्योंकि ये कैंटीन भी चला रहे हैं ना, कुछ लिखा ना इसमें, कैंटीन भी चला रहे थे। ये जब इलस्ट्रेशन हमने देखी तो क्या था इसमें, ये कैंटीन भी चला रहा है। He has, however, sublet the canteen to नारायण मूर्ति। अब इसने नारायण मूर्ति को ये कैंटीन सब लीज पे दे रखी है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, नारायण मूर्ति हैज मोबिलाइज्ड द नेसेसरी फिक्सचर्स एंड अप्लायंसेस फॉर द कैंटीन एंड शैल सफर डैमेजेस ऑफ ₹2 lakhs इन केस द कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। ठीक है भाई, उसने फ्रिज वगैरह ये सब चीजें मंगाई, अपना इंटीरियर वर्क वगैरह कराया, अब वो सारा लॉस हो जाएगा उसको। अमित तलवार हैड गिवन द नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर टू नारायण मूर्ति, but Narayan Murthy was in his ancestral village when the notice was received and could not raise any objection. On his return from the village, an application objecting to the disclaimer was filed by the advocate of Narayan Murthy, but was not admitted by the adjudicating authority.
तो इन व्यू ऑफ द अबव कैन द लीज राइट्स ऑफ सिनेमा हॉल बी डिस्क्लेम्ड, क्या ये लीज राइट्स को डिस्क्लेम कर सकते हैं? बट बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस रीड सेक्शन 162। थोड़ी कहानी आपने पढ़ ली, ठीक है, ये कहानी। अब 162 बोलता क्या है? ये है 162, डिस्क्लेमर ऑफ लीज होल्ड्स, ठीक है, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करता है। The bankruptcy trustee shall not be entitled to disclaim any leasehold interest unless a notice of disclaimer has been served on every interested person। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसके ऊपर पहले तो उसको नोटिस देना, ठीक है। अब इस केस में हमने नोटिस दिया कि नहीं दिया? हमने तो नोटिस दिया, लेकिन नोटिस उसको रिसीव नहीं हुआ क्योंकि वो अपने गांव में था। अब आगे देखते हैं। एंड नो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिंग टू द disclaimer by the interested person has been filed with respect to the leasehold interest within 14 days of the date on which the notice was served। तो डेट ऑफ जो सर्विस ऑफ नोटिस है उसके within 14 days if an application objecting to the disclaimer has been filed then it's okay, otherwise he can disclaim। Where the application objecting to the disclaimer has been filed by the interested person, the adjudicating authority has directed under section 163 that the disclaimer shall take effect, ठीक है। Where the adjudicating authority gives a direction under clause B of subsection 1, it may also make order with respect to fixtures, improvements by tenant and other matters arising out of the lease as ठीक है। एग्रीकल्चरल लीज हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग लीज हो सकती है, देयर कुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ लीजेस, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि और ये लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लेम करना चाहते हैं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबसे पहले तो उसको नोटिस देना है, नोटिस देना है, और अगर 14 डेज में उसको ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल ऑर्डर कि भाई जो फिक्सचर्स है या इंप्रूवमेंट्स है बाय टेनेंट्स उसका क्या होगा। ये है 162। अब 162 के क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव कैन द लीज राइट्स ऑफ सिनेमा हॉल बी डिस्क्लेम्ड? आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? अब पहले तो आप ये बताओ नोटिस दिया मीनिंग गया क्या या नहीं रहेगा? दिया गया? हाँ जी? लीगल राइट्स डिस्क्लेम करना, उसका मीनिंग क्या हो गया? हेलो? हाँ जी? what's the meaning of leasehold rights disclaim? Disclaimer of leasehold rights. Actually, leasehold rights means that the property does not belong to Mohanlal. Mohanlal has got this property on lease. कई बार सिनेमा हॉल लीज पर लेते हो आप, आपका प्रॉपर्टी नहीं होती वो। That immovable property does not belong to you। आप वहां पिक्चर चलाने के लिए राइट्स ले लेते हो, लीज होल्ड राइट्स, ये वो है। उसको आपने डिस्क्लेम करना है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। भाई नहीं प्रॉपर्टी सर, तो लीज पे भी हो सकती है ना। नहीं तो सर प्रैक्टिकली इस चीज को डिस्क्लेम कर सकते हैं, वो तो जो जिसके ड्यूज होंगे वो देने पड़ेंगे। नहीं, ड्यूज तो देने पड़ेंगे, इसीलिए तो डिस्क्लेम करते हैं ना कि बेकार का खर्चा हो रहा है, पिक्चर हॉल चल नहीं रहा, गांव में पिक्चर हॉल है चल नहीं रहा, वो समझ रहे हो, इसीलिए तो डिस्क्लेम करते हैं ना कि भाई लीज का रेंट है ज्यादा और प्रॉपर्टी उससे हो नहीं रही, कोई वो हो नहीं रहा उससे प्राप्ति। नहीं तो सर उसका अकाउंट सेटल करना पड़ेगा ना मेरी समझ नहीं, अकाउंट तो सेटल करना ही पड़ेगा, वो तो है ही, अकाउंट तो सेटल करना पड़ेगा। बट वो लीज होल्ड राइट्स की सपोज कोई वैल्यू डाल रखी है, भाई कोई जमाना था जिस टाइम ये पिक्चर हॉल चलता था, उस टाइम लीज होल्ड राइट्स की वैल्यू डाल रखी थी बैलेंस शीट में, आज की डेट में नहीं है वैल्यू। अब वो मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया, पुराने टाइप का पिक्चर हॉल है, गाँव में होते हैं ना सिंगल स्क्रीन वाले। भाई आपको एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा ना किसी भी चीज को। तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि इट हैड गॉट वैल्यू अर्लियर बट नाउ इट इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू, सो दिस बैंक्रप्सी ट्रस्टी को देखो, बैंक्रप्सी ट्रस्टी को तो अपनी बैलेंस शीट तो क्लीन करनी है ना, या तो बेचेगा या डिस्क्लेम करेगा, कुछ तो करेगा ना उसका। अब भी हो रही नहीं है लीज होल्ड राइट्स, भाई को और दूसरा लीज पे लेने को तैयार नहीं है। नहीं, और सर जैसे अगर कोई लैंड है जिसपे ओनरशिप राइट्स हैं तो वो भी वनरस हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। वो तो लिखा था ना, जो पहले वाली जो सिचुएशन थी वो यही था ना। 160 में क्या था, 160 में नाले के पास लैंड है कोई, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
160 और 162 में फर्क क्या है? 162 में लीज होल्ड है, उसमें फ्री होल्ड है, बस यही फर्क है, और क्या। तो जैसे कोई नाले के पास जमीन है तो उसकी वैल्यू तो होगी, मान लो उस पर देनदारी उससे ज्यादा है, हम मानते हैं कि पंचायत का टैक्स देने को देना, तो वो पैसा तो देना ही पड़ेगा। वो तो देना ही पड़ेगा, पर ये कि और फर्दर लॉस तो नहीं होंगे ना। वो तो हर महीने का देना पड़ रहा है, मान लो, या हर साल का देना पड़ रहा है। नहीं सर, अगर ओनरशिप राइट्स को अगर हमने डिस्क्लेम कर दिया तो हम उन उससे मतलब उसको इग्नोर कर सकते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमें नहीं लेना देना इससे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को भी डिसोन कर सकते हो, डिस्क्लेम कर सकते हो। तो उसका बाद में स्टेटस क्या होगा वो प्रॉपर्टी का? कुछ नहीं, जीरो। वो बेसिकली भाई, वो जैसे गोचर भूमि होती है, गोचर अच्छा, भूमि नहीं होती गाँवों में, वो तो गोचर भूमि गवर्नमेंट मान ली ले जाएगी। लेगा, गवर्नमेंट लैंड ले लेगा फिर वो। हाँ, बस बस गवर्नमेंट लैंड समझ लो, अबंडेंट हो गई वो। सर उस पे जो ड्यूज हैं उसको भी, उसको कोई क्लेम नहीं करेगा फिर हमसे? ड्यूज तो क्लेम करेगा ना, वो क्रेडिटर बन जाएगा ना बैंकरप्ट का। अगर कोई ड्यूज होंगे उसके लिए क्रेडिटर बन जाएगा, वो तो लिखा ही हुआ है। डिस्क्लेम का मतलब है कि अपने अपने लॉस को मिनिमाइज करना, हाँ फर्दर बिल्कुल लॉस से बिल्कुल बचाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या हाँ। जो अनप्रॉफिटेबल चीजें हैं उनको हटा देना। राइट, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको क्लीन करना है। अब है कि जो ड्यूज है वो तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिटर के शक्ल में आ जाएगा, हाँ, वो तो होना ही है, वो तो लेकिन आपको फर्दर नहीं देना पड़ेगा अगले महीने से। जिस दिन बिल्कुल आपने बिल्कुल डिस्क्लेम कर दिया वहां के बाद से खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ड्यूज है बस वही देना है। हम्म। तो इसमें ये बताइए कि क्या नोटिस दिया भी गया या नहीं दिया गया इसमें? भाई नोटिस तो उसने दिया, अब वो था नहीं वहां पर। अब या तो वो कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अदरवाइज तो नोटिस तो सर्व माना जाएगा इसमें। तो ही कैन डिस्क्लेम, और ये जो 2 lakhs है इसके लिए वो क्रेडिटर बन जाएगा। हाँ, वो तो सीधा है मामला। हाँ, adjudicating authority in its order directed Narayan Murthy to remove the fixtures installed by him without any direction as to costs. उसने कह दिया भाई जो तुम्हारा सामान है तुम निकाल लो, ठीक है, कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। तो नारायण मूर्ति क्या क्लेम कर सकता है? नारायण मूर्ति कैन क्लेम ₹2 lakhs बट नॉट द कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ फिक्सचर्स फ्रॉम मोहल्ला। जो अगर यस। उसको कोई कॉस्ट ऑफ रिमूवल है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। ये 162 हो गया आपका। 163, अब 163 देखते हैं। कंटिन्यूइंग विद द अबव illustration, an application challenging the disclaimer may be made by the following persons। ठीक है, अब जो चैलेंज कौन कौन कर सकता है? मान लो डिस्क्लेमर के लिए बैंक डिस्क्लेमर की एप्लीकेशन कौन लगाएगा? बैंक्रप्सी ट्रस्टी। नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन चैलेंज? दिस इज गिवन इन सेक्शन 163। So let us see what section 163 says. Section 163 talks of the challenge against disclaimed property. An application challenging the disclaimer may be made by the following persons under this section to the adjudicating authority. Any person who claims an interest in the disclaimed property. ठीक है, सुखबीर सिंह, राजबीर सिंह, जो भी है वो सारे। Any person who is under any liability in respect of the disclaimed property. ठीक है, or where the disclaimed property is a dwelling house, any person who on the date of application for bankruptcy was in occupation or entitled to occupy that dwelling house। कोई उसमें किराएदार हो सकता है। The adjudicating authority may on an application under subsection 1 make an order for the vesting of the disclaimed property in or for its delivery to any of the persons mentioned in subsection 1। तो उनको भी दे सकते हैं ये डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो क्लेम कर रहा है इंटरेस्ट, या उसकी कोई लाइबिलिटी है, या फिर वो ऑक्यूपेशन में है। The adjudicating authority shall not make an order in favor of a person who has made an application under clause B of subsection 1 except where it appears to the adjudicating authority that it would be just to do so for the purpose of compensating the person। ठीक है, तो ये है 163। अब देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें चैलेंज कर सकते हैं। हमने चैलेंज वाले लोग देख लिए, कौन कौन से लोग चैलेंज कर सकते हैं? ये जिसका इंटरेस्ट है, या कोई लाइबिलिटी है, या फिर अगर कोई ऑक्यूपेशन में है। तो हमारे में से कौन कौन से क्लेम कर सकते हैं? सुखवीर सिंह क्लेम कर सकता है, हम्म। नारायण मूर्ति, कर सकता है। रूपलाल,
रूपलाल कौन है? रूपलाल और चंद्रशेखरन। रूपलाल कौन था? अब रूपलाल देखिए इसमें कौन है। रूपलाल वो है मोहनलाल ने जिसको प्रॉपर्टी बेची थी, वो दूसरी प्रॉपर्टी थी एक्चुअली। रूपलाल तो नहीं आएगा इसमें। हाँ, और चंद्रशेखरन, चंद्रशेखरन भी है जिसको दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने बेची थी, वो बेंगलोर का रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा था। हाँ ये दोनों नहीं आएंगे। हाँ, तो ये आंसर इसका ए एंड बी हो जाएगा। ये फिर कुछ वो है एंटीसेडेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पेमेंट ऑफ डेट्स के ऊपर देख लेते हैं। 164, 165, ये जो है ना बेसिकली आपका अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन्स, एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन्स, ये जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ ना लिक्विडेशन में सीआईआरपी के बाद जो 43, 44, 45, ये वही है, सेम, कोई फर्क नहीं है इनमें। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ पीरियड का, और कोई फर्क नहीं है। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स में वो रिलेटेड पार्टी के बजाय कॉन्सेप्ट आ गई इसमें एसोसिएट की, ठीक है, और उसमें 2 इयर्स का पीरियड है, और अगर कोई एसोसिएट नहीं है तो उसमें 6 मंथ्स का पीरियड है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स में। 165 अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में यहां पर है आपका 2 इयर्स एंडिंग ऑन द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में रिलेटेड और अनरिलेटेड में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उसमें नॉर्मल पीरियड 2 इयर्स है, अगर एसोसिएट है तो उस केस में 6 मंथ्स का पीरियड है। और एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी 2 इयर्स का पीरियड है। टीआरपी में जो 1 साल का जो है, हम्म इसमें 6 महीने का है, चलिए, ये फर्क है। अब ये थोड़ा पेमेंट ऑफ डेट्स को देख लेते हैं कि पेमेंट ऑफ डेट्स की बात क्या है। ये 178 के ऊपर है। ए पार्टनरशिप फर्म XYZ एंड कंपनी having 3 partners XY and Z had given a guarantee which was invoked and insolvency and bankruptcy proceedings completed against the firm, ठीक है। After payment to various claimants there was a surplus of 3 lakhs. Profit sharing ratio of X, Y and Z is 1/3, 1/3, 1/3. So how this surplus of 3 lakhs shall be distributed amongst X, Y and Z? भाई सारे क्लेमेंट्स को देने के बाद में इनके पास सरप्लस बच गया 3 लाख का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X, Y और Z की है 1/3, 1/3, 1/3। तो ये जो 3 लाख का सरप्लस बच गया ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? Proportion में? हाँ बिल्कुल यही प्रपोर्शन में होगा, और क्या। नाउ X, a partner in the firm XYZ and company having 3 partners X, Y and Z had given a guarantee. X पार्टनर है, इसने गारंटी दे रखी है, ठीक है। इट वॉज इन्वोक्ड और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई अगेंस्ट X, ठीक है। आफ्टर पेमेंट टू वेरियस क्लेमेंट्स देयर वाज अ सरप्लस ऑफ 3 lakhs. So what shall be the treatment of this surplus of 3 lakhs in the books of the firm? ये जो 3 lakhs का सरप्लस है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा बुक्स ऑफ फर्म? जो वाई और जेड को मिलेगा पैसा, है वाई और जेड को मिलेगा, X को नहीं मिलेगा। उसका तो इन्वोक किया है ना। नहीं सर उसी का है ना 3 लाख रुपए, तो उसको उसका कैसे बटेगा? सर 3 लाख रुपए थोड़ी बटना चाहिए, तो उसका ही होगा ना एक्स्ट्रा। ये तो
Invoked a guarantee. I think this is X amount. अब बात ये है कि ये प्रॉपर्टी जो 3 लाख से ये है किसका? तिवारी जी सही बोल रहे हैं, अगर ये एक्स का ही अमाउंट है तो एक्स को मिल जाएगा, अगर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है तो इक्वल पड़ जाएगा। सर ये तीनों को बांटना है सर, इक्वली बांटना है। हाँ, a partnership firm XYZ and company having 3 partners had given a guarantee which was invoked, ठीक है। After payment there was a surplus. Insolvency commencement date है 1st January 2022 और interest due to secured financial creditors है 4 lakhs. Interest due to government authorities है 4 lakhs. Interest due to unsecured financial creditors है 4 lakhs. ठीक है। ये जो 3 लाख का इंटरेस्ट है ये कैसे बटेगा? भाई इसमें क्या होता है, एज पर सेक्शन 178 फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल इज पेड, उसके बाद में इंटरेस्ट की पेमेंट होती है एंड इंटरेस्ट इज डिवाइडेड इक्वली, इंटरेस्ट सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। एनी सरप्लस 178 सबसेक्शन 5 एनी सरप्लस remaining after the payments of the debts under subsection 1 shall be applied in paying interest on those debts in respect of the periods during which they have been outstanding since the bankruptcy commencement date. Interest payments under subsection 1 shall rank equally irrespective of the nature of the debt. ठीक है, चाहे कोई सिक्योर्ड हो, चाहे कोई अनसिक्योर्ड हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का है, सब में बराबर बराबर बटे। बराबर का मतलब क्या है? बराबर का मतलब देखो ये है कि ये 4-4 लाख रुपए है तीनों का, इसीलिए इनको 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर मान लो ये नहीं है कि अगर इंटरेस्ट किसी का कम है तो भी उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ये नहीं। मान लो इसका जैसे सपोज द इंटरेस्ट ड्यू टू सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर 50,000 ही होता तो फिर वो प्रोपोर्शनेट बटेगा तीनों में, ठीक है ना। जो भी रेशियो बचेगी जितना टोटल है और प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। इक्वल का ये मतलब नहीं है, इक्वल का मतलब यह है कि जैसे एक का है मान लीजिए 50,000, ठीक है, दूसरे का है 2 लाख और तीसरे का हो गया हमारा 3,50,000। ठीक है, ये मैं इसको शेयर कर देता हूँ, न्यू शेयर, ये ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए 3 लाख है, ठीक है ना, तो 3 लाख में इसको मिल जाएगा 25,000, ऐसे इसको मिल जाएगा 1 लाख और इसको मिल जाएगा 1,50,000, 1,75,000। इक्वल का मतलब ये है। Interest shall be distributed equally among the 3 creditors. अच्छा, क्या फ्रेश स्टार्ट जो है इंसॉल्वेंसी में जा सकती है? सपोज देयर इज ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, फ्रेश स्टार्ट से इंसॉल्वेंसी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? भाई आपने फ्रेश स्टार्ट पहले पढ़ा था, तो फ्रेश स्टार्ट से क्या इंसॉल्वेंसी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? यस सर, यस सर। So it will depend upon the resolution professional. So resolution professional, if he feels that okay, this person is not entitled for fresh start, so then he can recommend that insolvency proceeding should be started against this person. और ये बात कहाँ लिखी गई है बता सकते हैं?
तो फ्रेश स्टार्ट वाले को कन्वर्ट कर सकते हो, और इंसॉल्वेंसी से फ्रेश स्टार्ट में जा सकते हो, इंसॉल्वेंसी से भी फ्रेश स्टार्ट में जा सकते हो। बेसिकली इसीलिए वो रिपोर्ट मांगते हैं, वो जो होता है अपना आरपी, उससे रिपोर्ट इसीलिए मांगी जाती है कि वो एलिजिबिलिटी देखता है। ये कुछ पीरियड्स हैं, पीरियड्स विच आर स्पेसिफाइड, है ना। ये तो आप देख लीजिएगा अपने आप, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये एक चार्ट है टाइमलाइंस का बेसिकली। पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस, तो सर अभी इसमें आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे लिखा है, सर कौन सा सेशन में है? किसका? सर फ्रेश स्टार्ट से वाइस वर्सा, इंसॉल्वेंसी में इसका आप सेशन अभी आप पूछ रहे थे, कौन सा सेशन आप बता रहे थे सर? हाँ हाँ हाँ, तो सेक्शन आप बताइए, मेरे को तो खुद नहीं पता। सर एलिजिबिलिटी में आ जाएगा, हाँ जी, एलिजिबिलिटी में आ जाएगा 56 में। 91, but clarity नहीं है सर। 91 might be, but I'm not clear. जितना मुझे याद है हमने पढ़ा था, क्लैरिटी से लिखा था, बट क्लैरिटी से अब मिल नहीं रहा है। हम्म। कोई बात नहीं, हाँ जी, 91 में ही है, सही कह 91 रहे में। हैं। हाँ सॉरी 91। हाँ, थैंक यू सो मच युवराज जी। हम्म। $91 1 year, I think, sir. ठीक, ओके। अच्छा, एक और देख लेते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पर देख लेते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या है? गड़बड़ झाला एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म विच हैज 3 पार्टनर्स, गड़ बड़ और झाला, ठीक है, 3 पार्टनर। मिस्टर गबन वॉज अपॉइंटेड एज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है, और क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म आर मिस्टर पलटू एंड मिस्टर सीधा, ठीक है, ये फैक्ट्स है। तो व्हाट शैल बी द पनिशमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑफेंसेस, ठीक है। Mr. Paltu agrees to vote in favor of repayment plan for an amount paid to him by Mr. Gad. Mr. Gad उसको बोलता है कि भैया तुम रीपेमेंट प्लान के फेवर में वोट कर देना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तो इसकी पेनल्टी कौन से सेक्शन में लिखी गई है और कितनी पेनल्टी है, ये आपको बताना है। सर ये तो 184, 1 lakh 1 with an imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 5 lakh rupees, or with both. नहीं, कौन सा? आप सेक्शन 184 पढ़िए, सेक्शन 184 पढ़िए। सेक्शन 184 बोलता है वेयर द क्रेडिटर प्रोमिसेस टू वोट डिसऑनेस्टली इन फेवर ऑफ द रीपेमेंट प्लान। तो इसमें अप टू 3 टाइम्स द अमाउंट एक्सेप्टेड। मान लो उसको 2 लाख रुपए मिल गए, ठीक है ना, तो 2 लाख का 6 लाख रुपए देना पड़ेगा उसको, और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 ईयर्स, या दोनों हो सकती है। और अगर अमाउंट क्वान्टिफाइबल नहीं है तो फिर 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ये सेक्शन 184 में दिया हुआ है। आप कौन सा सेक्शन बता रहे थे? सर 184 1 पढ़ रहा था 2 की जगह। आई एम रीडिंग फ्रॉम कंपेंडियम, सॉरी। अच्छा, नहीं 184 है ना, 184 में दे रखी है ना ये। जी सर, 184 2 में दे रखी है सर, ये हाँ जो आपने बोली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सबसेक्शन 2, शेड्यूल 2। ठीक है जी। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 184 सबसेक्शन 2।
दूसरा आंसर देखते हैं। मिस्टर गबन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट, ये मिस्टर गबन कौन है? बैंक्रप्सी ट्रस्टी है। ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स a sum of rupees 10 lakhs by entering fictitious expenses in books। इसके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है और कौन से सेक्शन में बताया गया? ये आपको सेक्शन 186 में मिलेगा। नहीं, सेक्शन 186 में नहीं, ये तो 186E में मिलेगा। हाँ, नहीं, 186 में। ये तो बैंकरप्ट की बात कर रहा है ना, हमारा तो बैंकरप्सी ट्रस्टी ने गड़बड़ करी। 186B में। नहीं, ये तो बैंकरप्ट की बात करता हूँ। सर मिसअप्रोप्रिएशन मिसअप्रोप्रिएट तो मिस्टर गबन ने किया ना, मिस्टर गबन तो बैंकरप्सी ट्रस्टी है। अगर बैंकरप्सी ट्रस्टी कोई गड़बड़ करता है तो वो कहां से, कौन से सेक्शन में लिखा? 187। हाँ देखो, क्रेडिटर के बारे में लिखा 184 में, ठीक है, आपको 187 में मिलेगा। 187। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 187 में कितनी पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट है, फ्रॉडुलेंट मिसएप्लीकेशन, रिटेंशन और नॉन अकाउंटिंग और एक्टिंग विलफुली इन ए मैनर कॉजिंग लॉस टू द बैंकरप्ट। तो इसमें मिलेगा नॉट लेस देन 3 times द अमाउंट ऑफ द लॉस कॉस्ट, और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 years और बोथ। इन केस द अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल देन इट विल नॉट एक्सीड 5 lakhs। No liability in case of seizure or disposal of property on having reasonable grounds to believe that he is entitled to seize or dispose that property। ठीक है ना, तो इस केस में ये हमारा हो जाएगा 187 1E। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा हो जाएगा 187 1E। अच्छा, मिस्टर झाला absconds टू लंदन विदाउट इन्फॉर्मिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये लंदन भाग गया, तो कितनी पेनल्टी लग सकती है इस पे? और कहाँ लिखी है बात ये? 186 F has abandoned or attempts to abandon। हाँ, तो ये हो गया आपका 186 F has absconded or attempts to abscond after the bankruptcy commencement date, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5 lakhs or with both। And for this purpose of this clause, a bankrupt shall be deemed to have absconded if he leaves or attempts to leave the country without delivering the possession of any property which is required to। तो attempt के ऊपर भी है ये पेनल्टी। तो हमारा हो गया 186 F। अच्छा, मिस्टर बर्ड डज नॉट इन्फॉर्म द बीटी ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको कोई प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई इसके ऊपर और इसने बताया नहीं और उसने सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो इसके ऊपर क्या पेनल्टी है, कौन से सेक्शन में? 186D। 186D। यस, he has failed to deliver the possession of any property comprised in the estate of the bankrupt under his possession or control which is required to deliver under section 156, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5 lakhs or with both। तो ये हो जाएगा हमारा 186D। सर एक छोटी डाउट है सर। यस, 186F में if he attempts to abscond after the bankruptcy commencement date लिखा है, suppose before the bankruptcy commencement date होता क्या होगा सर? नहीं फिर तो कोई बार ही नहीं है ना, बैंकरप्ट जब एडमिट ही नहीं हुई एप्लीकेशन अभी तो कोई बात, जैसे ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी देयर इज नो बार, ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी ही कैन गो अब्रॉड। भाई 141F में ही तो लिखा है ना बात ये, तो 141F क्या बात करता है? 141 बात करता है आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंकरप्ट की, 141(1)F। तो ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी देयर इज नो बार। अच्छा, अगला देखते हैं। मिस्टर झाला asks his servant to put fire to certain documents belonging to the firm so that the data is destroyed। अब मिस्टर झाला जो है वो कहता है भाई आग लगा दो सारे डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसमें क्या? 186B। हाँ जी, 186B आ रहा है सर।
186 डी, डी तो नहीं आएगा। बी आ जाएगा, बी, बी फॉर बैंगलोर। Fraudulently has failed to provide or deliberately withheld the production of, destroyed, falsified or altered his books of accounts, financial information and other records. He shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5 lakh rupees or both. तो ये आ जाएगा 186 बी के अंदर। अगला देखते हैं। गड़बड़ झाला एंड कंपनी मेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 122 बट दे ओमिटेड डिटेल्स ऑफ सर्टेन एसेट्स डेलिबरेटली इन द एप्लीकेशन। ठीक है, इन्होंने 122 में एप्लीकेशन तो लगाई डेटर, बट दे ओमिटेड डिटेल्स ऑफ सर्टेन एसेट्स डेलिबरेटली। तो ओमिशन ऑफ डिटेल्स ये आपका 186(1) में आ जाएगा। If the bankrupt knowingly makes a false representation or willfully omits or conceals any material information while making an application for bankruptcy under section 122 or while providing any information, he shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5 lakh rupees or both. तो आपका 186 ए के अंदर आ जाएगा। अब ये तो आ गया, हो तो गया, बट अब बात ये है कि याद कैसे करना है इसको। ये सेक्शंस है हमारे 184 से शुरू होते हैं। 184 में क्या है? 184 में ऑन क्रेडिटर है बेसिकली, फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय क्रेडिटर। हेडिंग में तो क्रेडिटर लिखा है, लेकिन अंदर में एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? इफ ए डेटर और क्रेडिटर्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज फॉल्स in any material particulars in the to the resolution professional। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। जैसे 184 है, 184 talks of providing wrong information to the RP, but 186 talks of false representation or omission or concealment in an application। तो दोनों में फर्क है। अगर एप्लीकेशन में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो दैट विल कम अंडर 186, बट अगर if a debtor or creditor provides information which is false to the RP, he shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5 lakh rupees or both। और फिर क्रेडिटर्स का है अप टू 2 years है इसमें इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर पेनल्टीज वगैरह कम है, जो कॉर्पोरेट्स में लगाए ना पेनल्टी 68, 69 वगैरह में, उनसे उनके मुकाबले बहुत कम है। तो किसी के पास कोई लिंक है इसका, कुछ कैसे याद करना है इसको? पल्लवी जी, एनी आइडिया? हाँ जी, फाइन, कोई क्वेश्चन में फाइन पनिशमेंट आए तो इधर ये सेक्शन से याद आना सर बस। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट आप जैसे आपसे आपको तो दे विल गिव यू अ सिचुएशन और वो कहेंगे हाँ ओड नंबर इज 185 एंड 187। 185 डील करेगा विद आईपी एंड 187 डील विद बैंक्रप्सी ट्रस्टी, प्रोफेशनल से साथ डील कर रहा है। और इवन नंबर है 184 186। अच्छा हाँ ठीक है। तो 184 डील करता है डेटर और क्रेडिटर के साथ, और 186 डील करता है बैंकरप्ट के साथ। 186 में बहुत डिटेल्ड है, 6 पॉइंट्स है। डिटेल में
क्रेडिटर के केस में 184(2) में भी 3 times ऑफ द अमाउंट और इक्विवेलेंट है, और बैंक्रप्सी ट्रस्टी के केस में भी ऐसा ही है, 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ द लॉस। हम्म। थोड़ा ग्रुप में थोड़ा सा लिखिए सर इस बारे जाना में, पड़ेगा। थोड़ा ग्रुप में लिखिएगा कि भाई किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और आईपी वाला सेक्शन कौन सा अट्रैक्ट होगा? आईपी में जो है बेसिकली आईपी की बात है, एट इट इज एट द एप्लीकेशन स्टेज। भाई बाद में तो वो आरपी बन जाएगा ना। आईपी वो कब रहेगा? आईपी रहेगा जब एप्लीकेशन हैज नॉट बीन एडमिटेड, वो जब रिपोर्ट सबमिट कर रहा है ना, उस स्टेज पर वो आईपी है, उस स्टेज पे आरपी नहीं है। अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आईपी वर्ड कहाँ यूज किया गया और आरपी वर्ड यहाँ कहाँ यूज किया गया, क्योंकि ये आपके सेक्शंस तो देखो वहां से शुरू हो जाएंगे ना, 79 से शुरू हो जाएंगे आपके, फ्रेश स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। एंड हियर द वर्ड यूज्ड इज आरपी। सेक्शन 80 में भी आरपी वर्ड यूज किया गया। कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़िए इसको, ग्रुप में लिखिए, फिर बाकी डिस्कस करते हैं इसको। तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे पीपीटी। पहले ये इसमें नहीं था गड़बड़ झाला वाला, ये आज ही मैंने बनाया, मैं कहा कुछ बनाते हैं 2-4 पॉइंट्स कुछ इसमें, पहले नहीं था ये वाला। ओके जी, गुड नाइट। किसी का कोई Thank सवाल you, हो तो sir. पूछ सकते हैं। Very nice study, sir. गुड नाइट सर। वेरी गुड नेम। अच्छा, भाई नाम तो हम जानबूझ के ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा हंसी भी आनी चाहिए, जरूरी है वो, वरना बोरिंग हो जाता है।